Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the chapter Civilizing the Nature, Educating the Nation. And under this chapter, presently we are doing the topic what happened to the local school, the system, the education system which was happening, which was existing at that time. What was that system? Before the starting of the British education system, the indigenous education system was, we are discussing that indigenous, or we can say vernacular school. And we have seen that this William Adam, he was, he presented a report regarding this education system which was existing in Bengal and Bihar, because he was asked by the East India Company to give report for this progress of education in vernacular schools. Vernacular means जो भी local language से related होता है, हम उसे vernacular कहते हैं, as I told you in the previous class. So the report of Adam presents a lot of facts, lot of information about the vernacular schools. And as we have discussed that at that time, according to Adam's report, there were around 1 lakh Pathsala in Bengal and Bihar only. It's about Bengal and Bihar. And in these Pathsalas, there used to be no more than 20 students each. So in all, we can say the total number of children who were given education, who were imparted education in these Pathsalas were 20 lakh, around over 20 lakh, है ना. एक में 20 थे तो 1 लाख में 20 lakh. So and we have also seen that who established these Pathsalas. Either it was established by the local community or by the wealthy people of the society, or sometimes a teacher himself or herself can himself, because mostly उस समय का जो male dominated society में teacher used to be a male, तो teacher जो है वो अपने से भी open करते थे school. और we have also started discussing this कि the system of education was totally flexible in the sense that nothing was rigid. Like if you associate these things with today's system of a school, you will really wonder, because there were no fixed fees, as I told you, है ना. जो rich हैं अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए ज़्यादा फीस होती थी, और जो पुअर हैं उनके लिए कम फीस होती थी. कोई ड्यूरेशन नहीं है कि अभी तक मैं आपको इतने समय तक में आपको फीस सबमिट कर देना है, नहीं होगा तो सब पनिशमेंट होगा. नथिंग लाइक दैट. एवरीथिंग वॉज वेरी मच फ्लेक्सिबल, है ना. प्रिंटेड बुक्स वर नॉट देयर, नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग बिल्कुल भी अलग नहीं हुआ करता था कहीं पर भी. स्कूलिंग का मतलब सिर्फ पढ़ाई था. इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स आज के समय में होती है, दैट वाज नॉट देयर, है ना. कोई बेंच नहीं, कोई चेयर नहीं, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं, कोई ऐसा नहीं कि डिफरेंट क्लासेस हो रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की पढ़ाई के लिए डिफरेंट टीचर्स हैं, है ना. कोई भी अटेंडेंस रजिस्टर नहीं होता था. एनुअल एग्ज़ाम्स भी नहीं होते थे, जो कि बहुत ही यू विल बी रियली सरप्राइज टू नो दिस, है ना. एनुअल एग्ज़ाम्स का कोई सिस्टम नहीं था, कोई रेगुलर टाइम टेबल नहीं था. एवरीथिंग वॉज अकॉर्डिंग टू द नीड, है ना. जैसे भी नीड है बच्चों की, टीचर की, उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ एडजस्ट हो जाता था. तो इस तरह की चीज़ें होती थी, है ना. और जैसे अगर स्कूल बिल्डिंग नहीं है तो फिर पढ़ाई कहाँ होती थी, स्कूलिंग जो हो रही वो कहाँ होती थी. समटाइम्स इट वाज अंडर अ बनियान ट्री, है ना. समटाइम्स इन द कॉर्नर ऑफ अ विलेज शॉप, और टेम्पल में भी हो सकता था, या फिर गुरु के होम, जो गुरु है, जो टीचर है, उनके घर पे भी ये एजुकेशन का इम्पार्ट किया जा सकता था. तो स्कूल की बिल्डिंग नहीं होती थी, है ना. तो इस तरह से चीज़ें जो थी वो होती थी. टीचिंग टोटली ओरल थी, इसमें रिटन वर्क नहीं होता था, मतलब बहुत कम होता था, ना के बराबर. जो रिटन टेक्स्ट बुक था नहीं, तो टीचिंग वॉज कम्प्लीटली ओरल. And the guru decided what to teach. It was totally dependent on the guru.
ये नहीं कि उनको कोई सिलेबस कहीं से मिला हुआ है, किसी एक उनकी सेंट्रल अथॉरिटी है जहाँ से उन्हें सिलेबस मिला है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली उन्हें पढ़ाना है। नथिंग वाज लाइक दैट, है ना। वो अपने हिसाब से उनको जो लगता था कि बच्चों को जानना चाहिए वो उसे पढ़ाते थे, है ना। और न तो ये नहीं कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के बच्चे अलग अलग पढ़ रहे, नहीं, डिफरेंट एज ग्रुप्स के बच्चे एक साथ होते थे। दे ऑल वर टॉट टुगेदर अकॉर्डिंग टू देयर नीड, हर कुछ को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई कराई जाती थी, ठीक है। और सारे के सारे साथ बैठते थे, चाहे किसी भी एज ग्रुप के हो। दे यूज्ड टू सिट एट वन प्लेस, दे यूज्ड टू सिट टुगेदर। एंड गुरु जो है वो सभी जो ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन है उससे वो इंटरैक्ट करते थे सेपरेटली, और थ्रू दिस इंटरैक्शन ही एजुकेशन उनको दिया जाता था, नॉलेज उनको दिया जाता था। और जिसका जैसा लेवल ऑफ लर्निंग है, जैसा एज है, उसके अकॉर्डिंगली ही गुरु जो है उनसे उनको पढ़ाते थे, ठीक है। सो दिस वाज द सिस्टम विच वाज टोटली फ्लेक्सिबल। एंड Adam discovered that this flexible system was suited to local needs. ये क्यों ऐसा flexible system था? क्योंकि सबकी नीड्स का ख्याल रखा जा रहा था, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ही होता है कि when we are paying attention to the needs of people, then it becomes flexible. Any system becomes flexible. अच्छा, जैसे ज़रूरत है वैसे हम करेंगे, we have no fixed rules. तो ये वहाँ पर था। लाइक अगर हम देखें कि क्लासेस जो हैं, जो गुरु अपने बनियान ट्री के नीचे या अपने घर पे या टेंपल में या कहीं पे भी अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो जो पढ़ाई होता था वो हार्वेस्ट के टाइम में रुक जाता था। क्लासेस वर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग। क्यों? क्योंकि हार्वेस्टिंग का टाइम है, अभी जो बच्चे हैं, रूरल चिल्ड्रन हैं, दे विल वर्क इन द फील्ड्स, they are required by their parents in the field। तो उस समय में क्लासेस ऑफ हो जाती थी। अभी क्लास नहीं होगा क्योंकि हार्वेस्टिंग के टाइम में बच्चे खेतों में काम करेंगे। दिस वाज द सिस्टम, है ना। तो और जैसे ही एक बार हार्वेस्टिंग हो गई, उसके बाद हार्वेस्ट करके क्रॉप्स को स्टोर कर दिया गया। नाउ द क्लासेस विल बी रिज्यूम्ड। तो इससे क्या होता था कि जो पेजेंट्स के पेजेंट फैमिली के जो चिल्ड्रन हैं, दे वर ऑल्सो एबल टू स्टडी, है ना। अदरवाइज सपोज क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, तो जो पेजेंट्स के फैमिली के बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे, बिकॉज दे नीड टू वर्क विद देयर पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। एंड नाउ if there is the classes are going on during the harvesting season also, so they will not be able to attend the classes, and in this way their study will be hampered। तो ये नहीं होता था, जैसे ही ज़रूरत है लोकल नीड्स के अकॉर्डिंगली एवरीथिंग was done। okay, so we see up to the mid 19th century the company, East India Company, was concerned primarily with higher education। इसका जो कंसर्न था वो दैट वाज टोटली फॉर द हायर एजुकेशन, की हायर एजुकेशन को कैसे हम चेंज करें। अप टू द मिड 19th सेंचुरी, 1850s के आसपास यहाँ तक, अप टू 1850 the company, the concern of the company was only with the primarily, not only we can say primarily means mostly the company was concerned with higher education, है ना। तो हायर एजुकेशन है तो यानी कि अभी हम पाठशाला की बात कर रहे थे, है ना, वर्नैकुलर स्कूल्स विच वर कॉल्ड पाठशाला। तो ये पाठशाला जो हैं वो फंक्शन कर रहे थे। देयर वाज नॉट मच इंटरफेरेंस by the company in this system of पाठशाला, because they were concerned with the higher education। जो पाठशाला के एजुकेशन के बाद का जो कॉलेज लेवल का, जो यूनिवर्सिटी लेवल का एजुकेशन होता है, वो उस पर कंसर्न कर रहे थे टिल 1850, ठीक है। और इनमें कोई भी ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं हुआ। लेकिन 1854 में जो हमने देखा था, वुड्स डिस्पैच आया था, है ना। एंड नाउ द कंपनी डिसाइडेड टू, अकॉर्डिंग टू द guideline, according to the outline decided by the Woods Dispatch, it was now it was necessary to improve the system of vernacular education which was going on at the lower level, at the primary level,
है ना। तो अब वुड्स डिस्पैच के कारण कंपनी को वर्नैकुलर स्कूलिंग की जो सिस्टम थी उसको इम्प्रूव करना पड़ा। एंड इससे हम क्या मीन करते हैं कि वर्नैकुलर के सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ा। इसका ये मतलब है कि नाउ देयर वाज इंटरफेरेंस फ्रॉम द कंपनी इन द वर्नैकुलर स्कूल, है ना। और नाउ दे स्टार्टेड टू इंट्रोड्यूस ऑर्डर विद इन द सिस्टम। जो ऑर्डर नहीं था, अभी हमने देखा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि देयर वाज लैक ऑफ रिजिडिटी। कोई भी चीज़ ये नहीं कि ऐसा ही होना है, एवरीथिंग वाज फ्लेक्सिबल। तो अब उसको चेंज किया गया। अब ये होने लगा कि कंपनी इंटरफेयर कर रही है वर्नैकुलर एजुकेशन में, और कंपनी ये चाह रही है कि सब कुछ एकदम एक तरीके से हो, सभी जगह यूनिफॉर्मिटी हो, रूल्स बने, उन रूल्स को सबको फॉलो करना हो, है ना, रेगुलर वे में काम हो, और साथ ही साथ इंस्पेक्शन होगा। द कंपनी विल इंस्पेक्ट, कंपनी की तरफ से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग होंगे दे विल इंस्पेक्ट इन द वर्नैकुलर स्कूल्स की काम जो है वो कंपनी के रोल के हिसाब से हो रहा है या नहीं। तो इस तरह से इंटरफेरेंस जो है इट स्टार्ट्स आफ्टर 1854, है ना। और इस बात ये कैसे किया गया, ये इंटरफेरेंस जो है ये कैसे किया गया। तो कंपनी जो है कि इसने क्या किया, सबसे पहले इट अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित्स। नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल after 1854 interference in vernacular education, है ना। Now the question is how they interfered in vernacular education. इसके लिए पहला काम जो उन्होंने किया, they appointed ठीक है, they appointed government pundits. Now what was the function of these government pundits? Each of the government pundits were given the charge of looking after 4 to 5 school. हर गवर्नमेंट पंडित जो है 4 to 5 स्कूल को वो इंचार्ज बना दिया गया, ठीक है। एंड ये जो पंडित्स हैं इनका क्या काम था, इंचार्ज बनने का मतलब क्या हुआ, इंचार्ज का मतलब ये हुआ कि दे हैव टू विजिट द पाठशालास एंड दे हैव टू try to improve the standard of teaching which was going on in the पाठशालास, ठीक है। तो गवर्नमेंट पंडित्स 4 से 5 विलेज के इंचार्ज बने। अब उन विलेजेस को उन 4 से 5 जो पाठशालास हैं उनकी पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट लाइज विद द गवर्नमेंट पंडित, वो उसके जो कुछ भी वहाँ पर टीचिंग हो रही है उसको वो इम्प्रूव करेंगे, है ना। और हर पाठशाला का हेड कौन है, गुरु है। और 4-5 पाठशाला मान लेते हैं, 5 पाठशाला का जो इंचार्ज है वो एक पंडित है। तो हर पाठशाला एक गुरु के कंट्रोल में है और 4 से 5 पाठशाला जो है वो एक गवर्नमेंट पंडित के सुपरविजन में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो गुरु थे उनको एक पीरियोडिक रिपोर्ट सबमिट करना होता था। पीरियोडिक रिपोर्ट मीन्स gurus had to submit पीरियोडिक रिपोर्ट। पीरियोडिक रिपोर्ट मीन्स हर जैसे 3 मंथ्स पे 6 मंथ्स पे वो डिसाइडेड था उनका अपने हिसाब से एक पर्टिकुलर पीरियड का, हर या तो मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे आपको अपने स्कूल की प्रोग्रेस की रिपोर्ट भेजनी है ना। और जो भी टाइम टेबल डिसाइड हो गया कि आपको ऐसे पढ़ाना है, सिलेबस डिसाइड हो गया, है ना। टेक्स्ट बुक्स आ गए, अब जो चीज़ें अभी तक नहीं थी प्रिंटेड टेक्स्ट बुक आ गए, है ना।
और एनुअल एग्जामिनेशन का सिस्टम स्टार्ट हो जाता है इंडिया में, है ना। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स नाउ वेर आस्क्ड टू पे रेगुलर फीस, उनको अब रेगुलर फीस पेमेंट करना है, बिना फीस पेमेंट किए वो नहीं क्लास ले सकते हैं। जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई एंड रेगुलर उनको क्लासेस अटेंड करने हैं। ये जो हार्वेस्टिंग के समय में ऑफ हो जाती थी क्लासेस वो सारे ख़त्म हो गए, उनके फिक्स क्लासेस हो गए, फिक्स सीट्स हो गए, उनको न्यू रूल्स अब फॉलो करना है, टोटली डिसिप्लिन बनाना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब बदल गई वर्नैकुलर सिस्टम के अंदर। तो इसी की रिपोर्ट भेजेंगे गुरु जो है वो किस चीज़ की पीरियोडिक रिपोर्ट भेजेंगे, कैसे कैसे क्या क्या हम क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, है ना। ये रिपोर्ट भेजेंगे गवर्नमेंट पंडित्स को, गवर्नमेंट पंडित्स फिर आगे जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन्हें वो भेजेंगे, ठीक है। इस तरह से ये कंट्रोलिंग का सिस्टम स्टार्ट होता है और पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम हमारी जो है वो वर्नैकुलर सिस्टम जो था, वर्नैकुलर एजुकेशन जो था वो टोटली चेंज हो जाता है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि some gurus were not ready to accept these new rules, है ना। ऐसे भी लोग थे, ऐसे भी गुरुज थे जो कि इन न्यू रूल्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, नहीं करते थे। तो अब यहाँ पर ब्रिटिश जो है सबसे मेन, ब्रिटिश का अगर सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि जो कंपनी है उसका मेन एम क्या है कि पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम को, प्राइमरी सिस्टम को भी 1854 के पहले तक दे वर कंसर्न ओनली विद द हायर एजुकेशन, बट नाउ दे आर कंसर्न विद द प्राइमरी एजुकेशन ऑल्सो, दे आर कंट्रोलिंग द प्राइमरी एजुकेशन ऑल्सो। तो वो अब यही चाह रहे हैं कि हाउ टू completely control the primary education system. Now we see that some gurus are not ready to accept the rules of the company, है ना। जो उन्होंने टाइम टेबल बना दिया आप उसको फॉलो करिए, जो वो कह रहे हैं कि क्लासेस वाइज पढ़ाई होगी उसको आप फॉलो करिए, है ना, रेगुलर फीस लीजिए, एवरीथिंग वाज चेंज। तो कुछ गुरु उसको नहीं मान रहे। तो अब कैसे हर किसी को मनवाया जाए, what should be done, how all the gurus can't say force, कैसे उनको तैयार किया जाए कि वो हमारे रूल्स को माने। इसके लिए ब्रिटिश ने क्या किया कि जो पाठशाला न्यू रूल्स को एक्सेप्ट कर लेते थे अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द कंपनी विद द पाठशालाज वर गोइंग ऑन, तो उनको क्या होते थे, गवर्नमेंट एड देती थी, फाइनेंशियल एड। फाइनेंशियल एड क्या हो, पैसे से हेल्प करना, है ना। They used to the company gave financial aid to those pathshala which accepted the new rules, है ना। And the pathshalas who were not working within the new system, they were not getting any kind of financial support from the company, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने उसको कंट्रोल किया कि जो हमारे रूल्स को मानेंगे उनको हम फाइनेंशियल एड देंगे, जो हमारे रूल्स को नहीं मानेंगे उनको हम नहीं देंगे, है ना। तो इसमें क्या हुआ कि जिनको फाइनेंशियल एड मिलेगा ऑब्वियसली वो आगे बढ़ेंगे क्योंकि उनके पास अब पैसे आ गए। तो उनके स्कूल में जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ अब प्रोवाइड कर पाएंगे, है ना। सारी चीज़ें जो है वो उनकी ज़्यादा अच्छी होगी क्योंकि उनके पास पैसे हैं, उन्हें कंपनी पैसे दे रही है। और जो गुरु नहीं माना कंपनी के रूल्स को, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला, तो ऑब्वियसली वो पीछे रह जाएंगे, isn't it? दो स्कूल हैं, दो गुरु हैं, दोनों पाठशाला चला रहे हैं, एक को पैसे मिल रहे हैं कंपनी से, एक को पैसा नहीं मिल रहा है कंपनी से। तो जिसको पैसा मिल रहा है कंपनी से वो आगे बढ़ेगा, पैसे से बहुत सारी सर्विसेज, न्यू सर्विसेज वो प्रोवाइड कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अपने डेवलप कर सकते हैं, बिल्डिंग अच्छी बनाएंगे, है ना। तो वो आगे बढ़ेंगे। और जो गुरु ने नहीं माना सरकार की बात को, गवर्नमेंट की बात को, तो वो पीछे रह गए। तो अब ये प्रॉब्लम आई कि जो गुरु अपने इंडिपेंडेंस को रिटेन करना चाहते थे कि नहीं हम कंपनी के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम अपने तरीके से चलेंगे, दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू compete with the government aided and regulated पाठशालास, उनके साथ वो compete नहीं कर पा रहे थे, है ना। और इसके अलावा इसके और भी प्रॉब्लम्स आए, इसके और भी कंसिक्वेंसेस आए। ये हम क्या देखते हैं कि अर्लियर सिस्टम फ्लेक्सिबल था, तो पुअर पीजेंट्स फैमिली के भी जो बच्चे थे वो भी पाठशाला में आ जाते थे क्योंकि टाइम टेबल फ्लेक्सिबल था, क्लासेस नहीं होते थे हार्वेस्टिंग के टाइम में, फीस जो थी
वो फ्लेक्सिबल थी। लेकिन अब जो नया सिस्टम आया उसमें क्या हुआ कि रेगुलर अटेंडेंस चाहिए, हार्वेस्ट के टाइम में भी क्लासेस हो रहे हैं। तो अब जो पुअर पेजेंट्स फैमिली के बच्चे थे, दे वर नॉट एबल टू get education through these schools. Okay, so we will continue with this discussion in the next class.